सबको जय मसीह की। Praise the Lord to all. आज मैं बात करने वाला हूँ यीशु का छूना, Today I'm going to talk about the touching of the Jesus. कि यीशु हमें कैसे स्पर्श करता है। How do Jesus touch us? इसके बारे में हम आज बाइबल में अलग अलग तरीकों से देखेंगे। Today we will see this in Bible in different ways. सबसे पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट है कि यीशु हमें शुद्धता के साथ छूता है। First point is Jesus touches us with purity. जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 3 में, When we read in Matthew chapter 8 verse 3, तो वहाँ पर एक कोढ़ से रोगी होता है। so there was a person who was suffering from a dreaded skin disease. यीशु मसीह से कहता है Jesus says to him कि मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, that I want you to be healed, और वो कोढ़ी जो है वो चंगा हो जाता है। and the dreaded skin disease person was healed. मत्ती 8:3 में हम इस कहानी को पढ़ते हैं, We see this in Matthew chapter 8 verse 3. क्योंकि कोढ़ जो है बाइबल में एक पाप का चिन्ह है। Because a dreaded skin disease is a sign of sin in the तो Bible. यीशु मसीह ने उसको कोई छूता नहीं था, No one should touch him, पर यीशु मसीह ने उसको शुद्धता के साथ छुआ और उसको चंगा किया, but Jesus touched him with the hand of the purity and क्योंकि healed यीशु him. हमें शुद्धता के साथ छूता है। Because Jesus touches with the hand of the purity. तो दूसरा पॉइंट है, Second point is यीशु मसीह हमें शीतलता के साथ छूता है, Jesus touches us with the purity, बड़े सॉफ्ट with softness, शीतलता के साथ छूना। touching with softness. वो हमें बड़े सॉफ्ट तरीके से छूता है। He touches us in a very soft way. मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 15 में In Matthew chapter 8 verse 15. पतरस की सास बीमार होती है So but Peter's mother-in-law was having fever. और यीशु मसीह सिर्फ उसको बड़े सॉफ्ट तरीके से उसका हाथ पकड़ता है So Jesus just hold her hand with the softness, और उसका बुखार चला जाता है। and her fever is gone. तो बीमारी के समय में So in the time of illness, यीशु मसीह हमें धीरे से स्पर्श करता है जब हम प्रार्थना करते हैं, और वो हमें चंगा करता है। Jesus touches us slowly when we pray to him. और तीसरा पॉइंट है खोलने का स्पर्श। Third point is touching of opening. आंखों को खोलने वाला स्पर्श। Touch of opening of eyes. मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 29 और 30 में देखते हैं In Matthew chapter 9 verse 29 and 30 we see this. कि वो एक आंख से अंधा व्यक्ति होता है, उसको छूता है। There was a blind man and Jesus touched him. तो वो वचन उसमें कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और उसकी आंखें खुल जाती है जब वो यीशु को अपनी आंख देखने के लिए वो प्रार्थना करता है। So Jesus heals him and said, "Let you be healed according to your faith," and he was healed. जब वो कहता है कि प्रभु यीशु आप मुझे छूकर चंगा करें, When he says, "Jesus touch me and heal और me," यीशु उसको छूता है, so Jesus तो touched him. यीशु मसीह के पास आंखें खोलने का स्पर्श है। So Jesus is having the power of touching and opening of eyes. तो चौथा पॉइंट है यीशु मसीह हमें भरोसे के साथ छूता है। So Jesus Christ touch us with the trust, भरोसे का छूना। touching of the trust. तो जब हम मत्ती 17 के 7 में देखते हैं, When we see in Matthew chapter 17 यहाँ verse पर 7, मूसा को, एलिया को और यीशु मसीह को एक अलग ही रूप में देखते हैं। so here they see Jesus, Moses and Elijah in a different form. और वहाँ पर वो सारी चीज़ों को देखकर डर जाते हैं। They were afraid by seeing these things. तो यीशु मसीह उसको भरोसे के साथ कहता है डरो मत। So Jesus said them with the trust, "Don't be afraid." उनको छूकर कहता है डरो मत, He touched them and said, "Don't be afraid," क्योंकि वो डर गए थे because they were afraid. यीशु, मूसा और एलिया को बातें करते हुए, As Moses, Jesus and Elijah were talking, क्योंकि वो डर गए थे। because they were afraid. तो यीशु हमें भरोसे के साथ छूता है। So Jesus touched us with the trust. तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का डर क्यों ना हो,
So in our life, any afraid do we have? हमारे हर डर में वो हमें भरोसे के साथ छूता है और हमें खड़ा करता है। He makes us stand and he touch us with the trust when we are afraid. तो 6वां पॉइंट है कानों को खोलने का स्पर्श। The sixth point is touching of the opening of the ears. जब हम पढ़ते हैं मार्कुस की किताब When we read Mark और उसका 33 वचन, Mark chapter 7 उसका 33 वचन, Mark chapter 7 verse 33 verse. तो यहाँ पर एक बहरे के कानों को यीशु मसीह छूता है और उसको चंगा करता है। So Jesus touched the ear of a deaf man and he start hearing. तो हमारे कानों को भी परमेश्वर का वचन खोलता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है। So the word of God open our ears and grows our faith. रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 17 में हम देखते हैं In Romans chapter 10 verse 17 we see कि विश्वास सुनने से आता है that faith comes by hearing और सुनना मसीह के वचन से होता है। and hearing is from the word of God. तो यीशु मसीह ने यहाँ पर बहरे को छुआ और वो चंगा हो गया। So here Jesus touched a deaf and he was जब healed. उसने विनती की When he requested, कि मैं सुनना चाहता हूँ, I want to hear, तो उसने उसको छुआ so he touched him और वो सुनने लगा। and he started hearing. तो यीशु मसीह का एक बहरों के कान खोलने वाला स्पर्श है। So Jesus is having the touch of opening the ears of the deaf. 6वां पॉइंट है आशीष के साथ सोना। Sixth point is touching with blessing. आशीष का स्पर्श। Touch of the blessing. तो जब हम पढ़ते हैं मार्कुस की किताब अध्याय 10 वचन 13, When we read Mark chapter 10 verse 13, तो जब यीशु मसीह के पास कुछ बच्चे आते हैं, when some kids come to Jesus, मार्कुस 10:13 में, in Mark chapter 10 verse तो 13, चेले उनको डांट देते हैं। so disciples scold them. तो यीशु मसीह कहता है So Jesus says, कि लोग बालकों को उसके पास लाने लगे so people started gathering their children to Jesus, कि वह उस पर हाथ रखे, so he can lay their hands on them. पर चेलों ने उनको डांटा। But disciples scolded them. तो यीशु मसीह का जो है बच्चों को वो आशीष देता है। So Jesus blessed the children. तो हमारे बच्चों को परमेश्वर आशीष के साथ छूता है क्योंकि एक स्वर्गदूत उनके साथ हमेशा रहता है। Jesus touched the children with the touch of blessing because an angel is always with them. यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग का राज्य इन बच्चों के जैसा है। Because Jesus said that the kingdom of heaven is like these children. तो आशीष का स्पर्श। So the touch of the blessing. तो 7वां पॉइंट है Seventh point is सचेतक होने का स्पर्श, the touching of alertness. सुचेत करने वाला स्पर्श। The touch that alerts. तो जब हम देखते हैं लुका की किताब अध्याय 7 वचन 14, When we see Luke chapter 7 verse 14, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़के की मृत्यु हो जाती है। so there we see there was a kid who was dead. भीड़ उसको लेकर जा रही होती है। The crowd was carrying him. तो वहाँ पर यीशु मसीह आता है। So Jesus comes there. तो वो जब उसकी देखता है, उस विधवा माँ को देखता है When he see the widow mother, कि उसके बच्चे की डेथ हो गई और वो रो रही है, that she was crying that because her तो son is मार्कुस dead. 7:14 में वो कहता है So in Mark chapter 7 verse 14 he तब says, उसने पास आकर अर्थी को छुआ then he come and touched the grave और उठाने वाले ठहर गए। and the lifters were alert. तो वो चलने वाले रुक गए। So who were walking they stopped. उसने कहा, He said, हे जवान, O young ones, मैं तुमसे कहता हूँ तू उठ। I say you get up. तो यहाँ पर एक सुचेतक स्पर्श करता है कि मुर्दों में जान आ जाती है। So here Jesus touch with alertness and the dead are rise. तो
पता भी नहीं था कि वो जिंदा होगा कि नहीं होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। No one has thought that he will be alive or पर यीशु not. मसीह उस विधवा का दुख देखता है But Jesus see the sadness of that widow, और उसके बेटे को चंगा करता है, and he heals his son अर्थी को छूकर। by touching the grave. 8वां पॉइंट, 8th point is चंगाई का स्पर्श। touch of the healing. लुका की किताब अध्याय 22 वचन 51 में देखते हैं। In Luke chapter 22 verse 21 we see, लुका की किताब अध्याय 22 वचन 51 में जब हम देखते हैं when we see in Luke chapter 22 verse चंगाई का 51, स्पर्श, touch of the healing. तो 51 इस बार यीशु ने कहा, In this Jesus said, और उसके कान को छूकर उसने अच्छा किया। and he touched his ear and he was made well. लुका की किताब अध्याय 22 वचन 51 में लिखा है, In Luke chapter 22 verse 51 इस it's पर written, यीशु ने कहा, on this Jesus said, अब बस करो, now enough, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। and he touched his ear and made him well. तो यीशु मसीह का चंगाई करने का भी स्पर्श है। So Jesus is also having the touching of हमने healing. बाइबल में इन 8 पॉइंट को देखा। So we saw 8 points in the वो Bible. हमें शुद्धता के साथ छूता है, He touched us with the purity. वो हमें शीतलता के साथ छूता है, He touched us with the softness. वो हमें कानों को खोलने के लिए छूता है। He touched us for opening our ears. जब हम डर में होते हैं वो भरोसे के साथ छूता है। When we are afraid, he touches us with the trust. जब हमारे कान बंद हो तो वो कान खोलने के लिए छूता है। When our ears are closed, he touches us to वो open हमें it. आशीष देने के लिए छूता है। He touches us to give blessing. वो हमें सचेत करने के लिए स्पर्श करता है। He touches us to be alert. मुर्दे में जान डालने के लिए अर्थी को छूता है, For rising, he touched the grave. और हमें चंगाई देने के लिए वो स्पर्श करता है, छूता है। And he touches us for giving healness. तो हमें किसी भी हालात में क्यों ना हो, In any situation we are, हमें सिर्फ यीशु मसीह के पास आना है we should come to Jesus और उसे only कहना है, and says to him, परमेश्वर God, तू मुझे छू। touch me. तो आप उस स्पर्श को एक अलग ही लेवल पर महसूस करेंगे। So you will feel that touch in another level. इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। May God bless you from these words. आमीन। Amen.